Arnav, keep your microphone on mute mode. Rusham, please keep your microphone on mute mode. Shlok, everybody is requested to keep their microphones on mute mode. When you want to ask anything, that time you can unmute, and after asking the question, you can keep it again back to mute mode. We will start in 1 minute. के सीखना तो कैसे सीखेगा नहीं सारा Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Yeah. Good evening, sir. Very good. Very good. Very good. Now only one student is left, not yet joined, but we have started already, so we won't wait much. And straight away, I will go to our demo board. Yesterday's session was little fast to you, I understand. Today we are going to learn about a piece that is called as Rook.
very easy to understand. Yeah, yeah, yeah. One more thing is that board, because some of you, I have received the messages that some of you were not able to understand about the board. So I will repeat about the board as well. The board consists of total 64 squares. These are total 64 squares, of which 8 squares in a line. 8 squares in a standing line and And 8, 8 is equals to 64. yeah, 8 squares in the sleeping line. So we call it, these are the sleeping lines. See this. All are sleeping lines of 8 squares, bunch of 8 squares all the time. And these are also 8 vertical or standing lines. Clear? So 8 is 64. Total 64 squares are there. Now all these squares has a name. All these squares has a name. Now these vertical lines are given the name see A, B, C, D, E, F, G and H. So this entire vertical line is called as A line or A column. This is B column. This is E. This is G. And this is H. All vertical columns has got name. Similarly, all sleeping lines also has the name. So this is first line, second line, third line, fourth line, and so on. This is 8th line. Very clear? Very clear? Good. Yes, sir. Yes, sir. So now this particular square, it will be in a line also, A column also, and first line also. So we call this particular square as A1. Always and always alphabet first and numerical afterwards. Alphanumeric, we always say that. So this is a A1. Similarly, this will be A2 because in column A, but second number of square. A3, A4, A5, A6, A7 and A8. So this square will be automatically become C1 because it is in C column and first line. This is C2, C3, C4, C5, C6. So let me ask you now. Yeah, Shlok. What is this? F4. F4. Yeah, Aditya. What is this? D6. Vaibhav Sahu. What is this? Vaibhav? F2. No. This square. No. So everybody, see, I am taking your name. So only those will speak to whom I am asking. Okay? Lakshit, okay, beta? Yeah. Vaibhav? Rusham? What is it? Rusham? Which one, sir? Yeah, what is this? Which square is this? D3. Perfect. Lakshit, which square is this? Lakshit.
Which one? Lakshit, I couldn't hear. G7. Perfect, perfect, perfect. Sayyam, Sayyam, which square is this? Sayyam, D3, D6. this one, see, this one. Which one? See, I have, 3. G3. no, not at all G3. See this square, can't you see this? E1. E1, very good, very good, very good. Ria, this square. Ria. Hello, Ria, I cannot hear you. You have to unmute yourself. Yeah. Yeah. Ria, tell me. This one, Ria. What is the name of this square? Yeah, D5, D5. Okay, speak little loudly. Yeah, correct, correct, correct. D5, very good. Avni, Avni. Name of this Yes, square. sir. Name of this square. Yes, sir. Yeah, tell me the name of this square. Avni. G3. Perfect. Ashit Chitti. Name of this square. D7. Almost everybody has understood. Anybody has having any doubt about this? Any doubt about this? Understand? No, sir. No. So this is the first thing, okay, about the board. Hmm? So all of you will raise the thumb when you understand. You don't have to say yes. Very good. Perfect. Avni, your video camera. Ashit, Purusham, Ishan. Yeah, thumbs up. Perfect. Ishan and Rusham is left. Yes, very good. Ishan. Ishan Joshi. Vaibhav. Vaibhav has low. Yeah, Vaibhav, you can lower the hand. Very good. Yeah. Yeah. Vaibhav, you haven't understood because you have said low hand. You have said like this. Vaibhav, any internet connection? Okay, so everybody has understood. So we will move to other qualities of our board and how to keep the board. Okay, here you will find that there is a light square. This is a light square, dark square, light square, dark square. Alternate squares are light and dark. Color doesn't matter at all. This could be any color. Here, I will show you. This is another board. But here the color is different. Yes, yes, yes. मुझे नहीं, मुझे वापस से बताइए ना, उन्हें समझ में नहीं आया. Okay, 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 okay. Yeah. बोर्ड का हर एक स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर के नाम है बेटा. ओके. ओके, तो ये नाम जो है ना, वो कैसे है? तो ये जो स्ट्रेट स्क्वायर्स है ना, उनको इसको ए कहते हैं. पूरे लाइन को ए, इस पूरे लाइन को बी, ये पूरे हर एक स्क्वायर इज सी, डी, एफ, जी एंड एच. ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच. ऐसे ये 8 लाइन्स है सिर्फ. ओके,
वैसे ही ये भी लाइन्स, स्लीपिंग लाइन, वी कॉल दिस स्लीपिंग लाइन्स. वन Okay. first line, or this is second line, this is third line, fourth line, fifth line, sixth line, seventh and eighth. 8 लाइन्स है. तो ये जो स्क्वायर है कॉर्नर का, ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ए लाइन में भी आता है और फर्स्ट लाइन में भी आता है. तो इसे बोलते हैं A1. A1, AB, AC. Correct. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 and A8. Okay. Similarly, ये क्या होगा? D1, D2, D, D3, D4, D5, D6, D7, D8. very good, very good, very good. ये क्या होगा? G1, G2, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8. very good. You understood now? You understood now? No. Yes. Very, Yes. very good, very good. Vaibhav, are you able to listen clearly? Yes. Good, good, good. Now I am asking Vaibhav, बेटा, मैं उसको पूछ रहा हूँ. वैभव करके है अपना, तो वो ओडिशा से ज्वाइन किया है, भुवनेश्वर. तो इसे मैं पूछ रहा हूँ, तेरा लोअर हैंड आता है ना, इसके लिए मैं पूछता हूँ. अपर हैंड इज यू अंडरस्टूड एंड लोअर हैंड इज यू हैवंट अंडरस्टूड. आपको समझा है बेटा वैभव? ओके. अभी हम लोग बोर्ड किस तरह रखते हैं उसे देखेंगे. हमेशा बोर्ड के राइट हैंड साइड, आप जहां बैठे हैं, यहां पर बैठे हैं आप, इस साइड या इस साइड बैठे हैं, तो राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड हमेशा वाइट होना चाहिए. होना चाहिए. आप अगर इस तरफ बैठेंगे, समझो इस तरफ बैठेंगे, तो देखो ये राइट हैंड साइड आपका डार्क स्क्वायर हो गया. ब्लैक होता है. राइट हैंड साइड, मोबाइल ले ध्यान दे होते. यही सिर्फ आपको देखना है, ये आपको मालूम होना चाहिए और कुछ नहीं. बोर्ड रखने के टाइम आपको इस तरह से रखना है कि आपके राइट साइड को व्हाइट स्क्वायर आएगा, और कुछ ज्यादा ध्यान में मत रखो. समझ गए बेटा? रिया, हैव यू अंडरस्टूड दिस? आपको समझा? समझा. नेहा सांगी, नेहा श्लोक साहा, आरब भगवे. कब बता सो बजा ना थोड़ा. रिया, हाँ, आपको समझा? ये राइट साइड, आपका राइट हैंड साइड को व्हाइट स्क्वायर चाहिए हमेशा. हर स्क्रीन पे हेलो सर, नहीं हो रहा है. हेलो Sir, this is हेलो हेलो हेलो. यस सर. आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर Clear? तो रिया, आपको सुनाई दे रहा है बेटा? जी आपका, हाँ, गुड गुड. तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड. यू हैव टू रेज द हैंड. आपको थंब अप करना है. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. तो बोर्ड जो है ना, वो बोर्ड इस तरह से रखना है हमेशा कि बोर्ड की राइट साइड जो है वो व्हाइट स्क्वायर रहनी चाहिए. समझ गए? आपको समझ में आ गया? हाँ, Yes, sir. यस सर. वो रिया को शायद सुनाने में प्रॉब्लम, सुनने में यस प्रॉब्लम. सर. या रिया, सर आपका एक हो रहा है. यस यस यस, गुड गुड. तो आपको बोर्ड की तरफ इतना ही ध्यान देना है कि आप बोर्ड जब रखेंगे राइट साइड जो है वो व्हाइट स्क्वायर हो. ओके, नाउ वी विल
कम टू, ये क्या क्या है? है? हमने देखा ये क्या है, और रुक, हाँ वी कॉल इट एज, हम इसे हाथी बोलते मुझे खाएंगे तो क्यों जाए? हैं। ये छोटी बड़ी अरे तुम्हारे समोसा और अर्णव म्यूट कर बाबा बड़ा। Sir, can you hear me? यस क्लियरली आदित्य, देखो, see this is the rook, what we call it as elephant or हाथी, और in chase we हम इसे रुक बोलते हैं, ROOK के रुक। ये कैसे जाता है इस बोर्ड के ऊपर, तो ये सिर्फ सीधा जाएगा, कहीं भी जाएगा तो सीधा जाएगा, चाहे इस तरफ जाएगा ऐसे, या इस तरफ जाएगा, या सीधा जाएगा। यहाँ पर है तो वो पीछे भी आ सकता है, आगे भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, और इस तरफ भी जा सकता है। ये समझ में आ गया सबको, रुक कैसे जाता है, और सिर्फ। हाँ सर, यस सर, अभी हम लोग क्या करेंगे, रुक की ड्रिल ले लेंगे, रुक की एक ड्रिल ले लेंगे। इस ड्रिल में आपको क्या करना है, आपको साइड बाय साइड आपकी नोटबुक और पेन रखनी है, पेन और नोटबुक रेडी रखनी है। अभी जो भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, वो क्वेश्चन की आंसर आपको यहाँ पर देनी नहीं है, आपको नोटबुक में लिखनी है खाली। You have to write the answers in your notebook. When I give you the answer, you check whether you have written it right or wrong. आपको सिर्फ चेक, खुद को ही चेक करना है आपने सही जवाब दिया है या नहीं। So this way you will be able to learn very quickly. Let us go to drills. See here, now this is the rook. ये रुक है। अभी क्वेश्चन ये है कि ये रुक यहाँ पर A6 में आ सकता है, या G6 में आ सकता है, या C1 में आ सकता है। कौन से स्क्वायर में वो आ सकता है, यानी ही कैन ट्रैवल, वेयर ही कैन मूव, उसकी मूवमेंट मैंने बताई है, स्ट्रेट जाता है वो सिर्फ। तो इन 3 स्क्वायर में कौन से स्क्वायर में वो आएगा, एक ही स्क्वायर में आ सकता है, बाकी के स्क्वायर में वो नहीं आ सकता है। तो जिस स्क्वायर में आ सकता है, yes, Riya is saying A6, but you have to write the answer. You have to write the answer in your notebook. So the correct answer over here is A6. Perfect. Correct answer is A6. Yes, Vaibhav, any problem beta? Vaibhav, कुछ प्रॉब्लम आ रही है? No sir. नहीं नहीं, आई एम आस्किंग वैभव, वैभव साहू। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी देखिए यहां पर है ना, यहां पर 4 रुक है, व्हाइट के भी 2 रुक है, और ब्लैक के भी 2 रुक है। यहाँ पे व्हाइट के 2 और ब्लैक के 2, ये भी रुक है, ये भी रुक है, ये भी रुक है, ये भी है, और ये भी है। इसमें से कोई तो एक ही रुक वन ऑफ द हाईलाइटेड स्क्वायर में जा सकता है। कौन सा रुक कौन से स्क्वायर में जा सकता है वो आपको बताना है। एक ही रुक एक हाईलाइटेड स्क्वायर में जाएगा, वो सीधा जाता है, इतना ध्यान में रखिए, हमेशा सीधा जाएगा, आड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा।
ध्यान से देखिए कौन सा रुख। देखो अपने को क्या करना है, मन ही मन में सर 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 हाइलाइटेड बॉक्स नहीं सर वो वाइट सर जो वाइट एलिफेंट है ना वो ऐसे ये वाला एलिफेंट सर ये वाला हाँ ये वाला वो सीधा इधर जाएगा। इधर जाएगा, लेकिन हाँ इधर हाँ पॉन है बीच में, तो ये एनिमी का पॉन है, तो हाँ, तो वो उसको मार के जाएगा सामने। नहीं जा सकता है वही। सर वो लेफ्ट अपर कॉर्नर का ब्लैक वाला जा सकता है। व्हाट अर्नव सेज कि ये इधर जा सकता है। यस यस, दैट इज द आंसर। दिस इज नॉट अ गुड आंसर, क्योंकि यहाँ पर बीच में ये है, इसको पार करके वो आगे नहीं जा सकता है। And we do not get the double chance. नहीं, नो डबल चांस, नो डबल चांस, ओनली सिंगल चांस। Yes. ओके सर। हम लोग वो वाला खेलेंगे तो हम लोग उसको मारेंगे तो उसके साइड में जो एक ब्लैक है वो हमें मार देगा। तो आ सकता है। साउंड हेलो हेलो एवरीबॉडी प्लीज बी एवरीबॉडी Sir, I now understand. who didn't सर understand एक और क्वेश्चन पूछो ना, अब तो मैं आंसर दूंगी। है ना क्वेश्चन। डोंट वरी, Sir, I now समझा नहीं है अभी, understand. समझा नहीं है। Sir, I don't understand. शाश्वत you शाश्वत अंडरस्टूड ना? No, I don't understand. Sir. नो ओके सी, यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोई तो एक रुख, या तो ये रुख या तो ये रुख या तो ये रुख, चार रुख है। ये चार रुख में कोई तो एक रुख हाईलाइट, कौन सा भी तो एक रुख एक ही हाईलाइटेड स्क्वायर में जा सकता है। तो आपको फाइंड आउट करना है कौन सा रुख सर A8 वाला रूप A4 पे जा सकता है। बराबर A4 में जा सकता है। समझ गया शाश्वत? Yes. गुड 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 गुड। रिया समझा तुझे? आपको समझा बेटा? वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी वही ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई तो एक रुख, इसमें से एक रुख हाईलाइटेड ब्लू स्क्वायर में जाएगा, तो कौन सा रुख जा सकता है वही आपको फाइंड आउट करना है। एक और या दिस प्रॉब्लम, या कोई तो एक रुख, देखिए ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ। सर H6 वाला ग्रुप H3 में जाएगा। H6 वाला सर। वेरी गुड। H6 वाला ग्रुप H3 में जाएगा। H6 वाला रूप H3 में जाएगा। सर मैंने उधर देखा भी, बट मेरे को समझा नहीं हाईलाइट है कि नहीं है। है कि लोग म्यूट करो और आपका आंसर जो है वो आपके को लिखो। सब लोग बोलेंगे। हेलो सर। यस 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 साहू, आपका आवाज नहीं आ रहा है साहू, वैभव। इंटरनेट सम प्रॉब्लम इज देयर, इंटरनेट प्रॉब्लम इज देयर।
ओके, सब लोग आंसर जो है वो अपने आंसर शीट में ही लिखना है, ना कि बोलना है। आपको बोलने को नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों को भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर आप आंसर पहले से ही दे देंगे तो बाकी लोगों को सॉल्व करने के लिए मजा नहीं आएगा। मजा नहीं है। ठीक है ना? शाश्वत, श्लोक, ईशान, आर्नव, या वेरी गुड। तो यहाँ पर एक रुक जो जाता है वो है ये रुक। ये रुक इस स्क्वायर में जा सकता है, H3 में। बाकी कोई भी रुक कोई भी हाईलाइटेड स्क्वायर में नहीं जा सकता। सो आंसर इज रुक H3। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपको, ये जो रुक जो है, ये रुक कौन कौन से स्क्वायर में जाएगा, वो स्क्वायर का नाम लिखना है आपको। सिर्फ आपके नोटबुक में कौन कौन से स्क्वायर में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं, यहां पर आ सकता है यस, तो इसका नाम लिखना है E5। यहां पर आ सकता है यस, इट गोज स्ट्रेट ना, तो F5। सर यस, हम लोग कितने भी लिख सकते हैं कि एक ही लिखना है? नहीं, कितने भी, जितने स्क्वायर्स अवेलेबल है वो सब लिखने हैं, ऑल स्क्वायर्स। G5 and H5। और उसके आगे भी है, बोर्ड पे लिखना है, मतलब बुक में लिखना है, ये लोग बोल रहे हैं सर। बोरिंग है। ओके, आप मन ही मन में लिख दो। सी अल्टीमेट एम इज आपको ये आना चाहिए और कुछ नहीं। आप बिना लिखेंगे भी अगर आपको आएगा तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। I do not have objection if you do not write, but you should understand this very clearly. कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया तो बाद में इजी हो जाता है। ये डिफिकल्ट चीज यही है कि कंसेप्ट रहना है कि रुक कैसे मूव होता है। रुक की मूवमेंट आपको समझ गई तो आपको बाद में सब आसानी है। It can go to G5, it can go to H5, it can go to C5, B5 and A5. All squares it can go. वैसे ही वो यहाँ पर वर्टिकल, हाँ वर्टिकल ऑल्सो यहाँ भी जा सकता है। D6, D7, D8, D4, D3, D1, D2, D1। या इतने सारे स्क्वायर में वो रुक जा सकता है, कैन ट्रैवल। ओके, नेक्स्ट। सर वो बीच में है। हाँ, अभी बस उसी तरह आपको करना है। ये कहाँ कहाँ जा सकता है सोच लीजिए। यहाँ पर कुछ कुछ जगह वो नहीं जा सकते हैं। यहाँ जा सकता है E5, यस। F5 में जा सकता है, यस। G5, H5। यहाँ पर जा सकता है, नहीं। अपने फैमिली मेंबर निकाल के वो नहीं जा सकता। यहाँ पर जा सकता है, उसके ऊपर से छलांग मार के, नहीं। इट इज नॉट अलाउड टू जंप, जंपिंग इज नॉट अलाउड। बट यहाँ जा सकता है वो। D4, D2 एंड D1, इस सब जगह वो जा सकता है। यहाँ पर सब जगह, यहाँ पर राइट में। सर वो डी, सर वो C में किल कर सकता है, C5 में। C5 में वो जा ही नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है, क्योंकि फैमिली मेंबर है। फैमिली मेंबर अगर है तो उसको अलाउड ही नहीं है वहां जाने को। सर वो F5 में तो जा सकता है ना। F5 में जाके फिर उसके मतलब नेक्स्ट चांस आने के बाद वो ऊपर जा सकते हैं और फिर उसको मार भी सकते हैं ना। बट सर ने एक चांस बोला। सेम चांस में नॉट अलाउड। नेक्स्ट चांस सर, मैंने नेक्स्ट चांस बोला।
सर मैं एक चांस बोला, हाँ हाँ बेटा, उसको भी समझ एक चांस में वो कहा जा सकता है। उसको समझाए। मैं कब से यही बोल रही हूँ कि दूसरे की चांस के बाद एक चांस जब हम लोग का आएगा तभी ऊपर जाके मार सकते हैं, ऐसा पूछ रही हूँ। बराबर। ओके आदित्य, अंडरस्टूड? गुड। नेक्स्ट, यहाँ पर भी सिमिलर क्वेश्चन है, ये रूप कहाँ कहाँ जा सकता है? थोड़ा डिफिकल्टी दिया है इसमें। ये रूप कहाँ कहाँ जा सकता है? ट्रैवल, वेयर ही कैन ट्रैवल। यस रिया, यू वांट टू? सर he can capture queen. यस, नहीं